آج کا دوسرا نشست کوشچن اینڈ آنسرز کا ابتدا میں کرنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ. تو جو لوگ بھی آج کے عنوان اسلام اور عیسائیت کے درمیان یکسانیت، یہ ابھی یہ تقریر آپ جناب شفیع صاحب صدر UIRC کا تقریر آپ سن چکے ہیں. میرے سامنے ایک بائیں جانب مائک کا انتظام ہے. IRDF کے والنٹیئر سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ مائک پہ آئیے اور لوگوں کو لائن پہ ایک اچھے انداز میں ٹھہرائیے تاکہ اس سوال جواب کے نشست کو ہم خوبصورت بنائیں اور دلچسپ انداز میں اس کو آگے بڑھائیں. یہ سوال جواب کے نشست کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس کے تعلق سے چند اعلانات اور چند قوانین آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کو بہت ہی مندرجہ انداز میں آگے بڑھائے اور کم وقت میں زیادہ فائدہ ہم لوگ اٹھائے. سب سے پہلے سوال کرنے والے اپنا نام اور کام آکوپیشن بتائیں گے. سوال اردو یا ہندی میں ہوگا. ایک وقت ایک ہی سوال کر سکتے ہیں آپ. سوال آج کے عنوان پر ہونا چاہیے. ایک سے زیادہ کسی کا سوال ہو تو واپس دوبارہ کیوں میں پیچھے ٹھہر جائیے کہ دوسروں کو موقع ملنے کے بعد پھر وقت رہے گا تو ضرور آپ کو موقع دیا جائے گا. ایک وقت میں ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ سوال کرنے کے بعد جیسے مقرر کو ان کو اس جواب جس انداز میں دینا چاہتے ان کو اختیار ہے وہ جواب دے سکتے. اس کے تعلق سے آپ بحث نہ کریں. السلام علیکم. میرا سوال شفیع صاحب کے لیے. میرا نام اس کے عبدالمجیل ہے. میں BCom اسٹوڈنٹ ہوں. بائبل سے آپ نے بتایا کہ سب کے مددگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں عیسائی کے لیے، لیکن عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ مددگار ہولی اسپرٹ ہیں. اس کا جواب دیجیے. ماشاءاللہ بہت بہترین سوال کیا ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بائبل میں ہے. بائبل کے اندر جہاں عیسیٰ علیہ السلام جو بتائے ہیں مددگار کے بارے میں، میرے بعد میں ایک مددگار آئیں گے. وہ مددگار کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ورس کو عیسائی لوگ دیکھ کے کہتے ہیں مددگار آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں بلکہ یہ ہولی اسپرٹ ہے، سچائی کی ایک روح ہے، ہولی اسپرٹ ہے، یہ کہتے ہیں. تو حقیقت میں اگر ہم غور کریں گے یہ ہولی اسپرٹ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم غور کریں گے. بائبل کے اندر نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل آف جان چیپٹر 16 ورس نمبر 7 اگر پڑھیں گے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں، میں جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، بہتر ہے. میں اگر نہیں جاؤں گا تو وہ مددگار آپ کے پاس نہیں آئے گا. تو یہاں پہ کنڈیشن یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر نہیں جائیں گے وہ مددگار نہیں آئے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام چلے جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. مگر ہولی اسپرٹ کے بارے میں، جو سچائی کا روح کے بارے میں جو عیسائی لوگ بات کر رہے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر تھے اسی ٹائم پہ ہولی اسپرٹ زمین پر آتی تھی. اس کے کئی دلائل ہیں. یہ پہلی ایک وجہ ہے، وہ ہولی اسپرٹ نہیں ہے، وہ مددگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے لیے. دوسری بات اگر ہم غور کریں گے گاسپل آف جان چیپٹر 16 اور 12 کے اندر اور 13 کے اندر دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ آنے والے جو مددگار خود سے کچھ نہیں کہیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے وہی آپ کو بتائیں گے. جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بتائے قرآن اور حدیث، وہ جو وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی وہی وہ بتا رہے تھے. مگر ہولی اسپرٹ کے بارے میں عیسائی لوگ کہتے ہیں ہولی اسپرٹ خود بیان کرنے والے ہیں، وہ خود خدا ہے. ہولی اسپرٹ کو خود خدا مانتے ہیں، وہ خود بیان کرنے والے، کسی سے سننے کی ضرورت نہیں. یہ دوسری بات ہے، مددگار ہولی اسپرٹ نہیں ہو سکتے، مددگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اسی طرح اگر ہم اور دیکھیں گے گاسپل آف جان چیپٹر 14 ورس نمبر 16 کے اندر دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں خداوند سے التجا کروں گا، دعا کروں گا تاکہ تمہارے پاس ہمیشہ رہنے کے لیے ایک دوسرے مددگار کو بھیجے. یہاں پہ غور کریں گے مددگار سے پہلے دوسرے مددگار، دوسرا کا نام استعمال ہوا. دوسرا مددگار مانے پہلا ایک مددگار ہونا چاہیے، اس کے بعد دوسرا مددگار. اگر ہولی اسپرٹ ہے مددگار کے مانے تو کیا ہولی اسپرٹ دو ہے؟ کہ سچائی کے روح دو ہے؟ نہیں ہے، ایک ہی ہولی اسپرٹ ہے. مددگار اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کیا دو مددگار ہے؟ برابر ہے. پہلے مددگار عیسیٰ علیہ السلام ہے. اس کے لیے دلیل اگر دیکھیں گے جان جو لکھے جو پہلا لیٹر ہے اس میں چیپٹر 2 ورس نمبر 1 کے اندر لکھا ہوا ہے خداوند کے پاس ہمارے لیے ایک مددگار ہے جو عیسیٰ مسیح ہے. تو عیسیٰ مسیح بھی ایک مددگار ہے، اس کے بعد آنے والے دوسرے مددگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس طرح اگر دیکھیں گے بہت سارے دلائل ہے، یہ مددگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. مگر اب عیسائیوں میں یہ سوچ کیوں پیدا ہوا مددگار یعنی سچائی کی روح ہولی اسپرٹ کہہ کر کیوں پیدا ہوا؟ اس کا ریزن یہ ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے گاسپل آف جان چیپٹر 16 ورس نمبر 12 اور 13 کے اندر لکھا ہوا ہے مددگار یعنی سچائی کی روح کہہ کر ورس ہم کو دکھتا ہے. تو سچائی کا روح کہہ کر کیوں لکھا گیا؟ اس کے اگر ہم دیکھیں گے
जो जॉन का जो लेटर है उसके अंदर चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 1 के अंदर रूह का माने क्या है हमको मालूम होता है। वहां पे कहते हैं ये अजीज लोगों तुम हर रूह पर यकीन नहीं करना, कौन सी रूह खुदा के जानिब से है कौन सी चीज खुदा के जानिब से नहीं है तहकीक करना, क्योंकि इस दुनिया में इस समाज में बहुत सारे झूठे नबी फैल चुके। यहाँ पे गौर करने की बात है, दुनिया में बहुत सारे झूठे नबी अगर आए तो हर नबी पे ईमान नहीं लाना, कौन सा नबी सच्चा है कौन सा नबी झूठा है तहकीक करना, इस तरह होना चाहिए। मगर वहां पे यह है कि कौन सी रूह सच्ची है कौन सी रूह सच्ची नहीं है तहकीक करो। माने रूह का माने नबी है, सच्चाई का रूह का माने सच्चाई का नबी है, वो नबी और कोई नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं समझता हूं कि आपका सवाल का जवाब मिला। कोरान बाइबल जुग जुग धरी पृथ्वी अच्छी तार देश में कहीं परिवर्तन आसुना देखना गोटा रक्तपात धर्मर कौन धर्मर अर्थ कौन धर्मर गोटा आईन नियम धर्म हूँ नियम बोल रहे हैं कि गीता बाइबल कुरान ठीक है, इसमें जो है बात ये बहुत पुराना है। तो आजकल लोग जो हैं क्यों ज़्यादातर झगड़ा कर रहे हैं, हांडा काटा जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? धर्मर भैल्यू है ना कौन दया प्रेम करुणा शांति प्रेम तो धर्म जो बोलता है कि शांति बोलता है पवित्र बोलता है, ऐसा क्यों हो रहा है? भैल्यू मूल्यबोध यहाँ मूल्यबोध यदि न रहा सी कि धर्म से ठीक है, मूल्यबोध है सवाल समझ में आया है पवित्रता ठीक है। ब्रदर शफी साहब के लिए सवाल है कि धर्म के बारे में बोले पुरानी बात है लेकिन अब लोग झगड़ा कर रहे हैं, शांति नहीं है समाज में। आपका नाम मैं जान सकता हूँ, आपका नाम क्या है सर? गोविंद चंद्र मौली। गोविंद चंद मौली साहब, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अहम सवाल किया है। आज यहाँ पे जो है सारे धार्मिक किताबों के बारे में, धार्मिक किताबों के एकसानियत के बारे में बता रहे हैं। धार्मिक किताब तो जो पुराने हैं, मगर आज दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आपस में झगड़ रहे हैं, कहीं भी शांति नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसका रीज़न क्या है, इसका वजह क्या है? इसका मेन वजह ये है, आज इस समाज में जो हिंदू है, ईसाई क्रिश्चियन है, जो मुसलमान हैं, ये लोग समझते हैं हम आपस में अलग अलग है। एक हिंदू समझता है मैं मुसलमान से अलग हूँ, एक मुसलमान समझता है कि मैं एक क्रिश्चियन से अलग हूँ, एक क्रिश्चियन समझता है कि हिंदू मुसलमान से अलग है। हकीकत क्या है? क्या ये सारे लोग अलग अलग हैं? तो इसके लिए कुरान जवाब देता है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 1 के अंदर, एक के मुताबिक सारे इंसान एक माँ बाप के औलाद है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कुल्लुकुम बनी आदमा व आदम मिन तुराब, ए इंसानों आप तमाम आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, आदम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। तो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो जैन हो, सारे मजहब के सारे इंसान एक माँ बाप के बच्चे हैं, ये कुरान के मुताबिक। और बाइबल हम देखेंगे, बाइबल में जेनेसिस जो पहली जो किताब है उसके अंदर ही लिखा हुआ है एडम एंड ईव के बारे में जिक्र है। कौन? आदम और हव्वा जो कुरान में है वही एडम एंड ईव, वही अरबी बाइबल में हव्वा एंड आदम का जिक्र है। यही अगर हिंदू मजहबी किताबों का हम देखेंगे, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है आदमो नाम पुरुषः पत्नी हव्यवती तदा, आदम नाम का जो पुरुष है उनकी जो पत्नी हव्यवती, ये दोनों के औलादे सारे इंसान है। अब बताइए, कुरान कहता है, बाइबल भी कहती है और साथ ही साथ हिंदू मजहबी किताब भी कहते हैं सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम के औलाद है। अब बताइए क्या हम अलग अलग है, सब एक है? हमको मालूम होता है सब हम एक है। किस तरह के एक है? एक माँ बाप के औलाद, आपस में खूनी रिश्ता है, खूनी रिश्ता है। ये हम जब जान जाएंगे हमारे दरमियान एक मोहब्बत आएंगी, हम मिलजुल कर रहेंगे। और दूसरी बात है, आज समाज के अंदर लोग ये कहते हैं मेरा खुदा अलग है, तुम्हारा खुदा अलग है ना। ये जो तस्वुर लोगों में आ गया, इसीलिए लोग दूर हो गए। हकीकत क्या है? कुरान में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 163 के अंदर व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम, ए लोगों, ये सारे लोगों सुन लो, क्या है? तुम्हारा माबूद, तुम्हारा खुदा एक ही माबूद है, एक ही खुदा है। दो खुदा, तीन खुदा, एक मजहब के लिए खुदा, एक देश के लिए खुदा, ऐसा नहीं है। सारे इंसानों के लिए एक ही खुदा है। अब बताइए, हम तमाम लोगों को एक खुदा जब पैदा किया, क्या हम अलग अलग हो सकते हैं? एक है, हम सब एक है। इसका इल्म नहीं होने की वजह से जो है हम आपस में लड़ रहे हैं। हम सब मिलजुल के रहना चाहिए। सारे लोगों का खुदा एक है, कुरान का तालीम है। यही बाइबल में भी देखेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, 29, 30 के देखेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए इस्राएल सुनो, हमारा खुदा जो खुदावंद एक खुदा है, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है, हमारा खुदा एक ही खुदा है। ईसा अलैहिस्सलाम का तालीम है। ईसा अलैहिस्सलाम भी लोगों को कहते हैं हमारा खुदा एक है।
है ना। इसी तरह अगर हम हिंदू मजहबी किताबों को देखेंगे, वहां पे लिखा हुआ है ये को ही रुद्रोना ना द्वितीय या तस्तुहा, ये इमाम लोकानी शता ईशनी भी, ये सारे कायनात को पैदा करने वाला, उसको चलाने वाला रुद्र जो खुदा है एक ही है, उसके अलावा दूसरा नहीं है। तो सारे इंसानों को पैदा करने वाला एक है, सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद है। जब हम ये बात को समझ जाएंगे आपस में मिलजुल के रहेंगे। और अहम जो बात है, आज दुनिया में अशांति क्यों है, आज समाज में लोग क्यों लड़ रहे झगड़ रहे हैं, इंसान का सोच ये है मैं खुश रहूं, खुद मैं अकेला खुश रहूं, जो कुछ भी हो जाओ समाज में मैं खुश रहूं, इस तरह का रवैया है। हर आदमी अपनी खुशी देख रहा है, सामने आदमी की खुशी के बारे में नहीं सोच रहा है, इसीलिए सामने आदमी को, दूसरे आदमी को नुकसान करने के लिए आगे बढ़ रहा है। मगर यह मालूम होना जरूरी है, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है सूरह ज़िलज़ाल में, सूरह नंबर 99 आयत नंबर 6 और 7 में, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इंसान जो कुछ भी छोटा सा नेक काम भी करेगा तो उसका भलाई जन्नत में देखेगा, अगर एक भी बुरा काम करेगा तो उसका वहां पे सजा भी है। तो इंसान ये मानना चाहिए खुदा हमको देख रहा है, खुदा हमको सुन रहा है, हमारे कामों का अच्छा काम करेंगे तो वहां पे इनाम देगा, बुरा काम करेंगे तो हमको वहां पे सजा भी मिलेगी। जब खुदा का खौफ आ जाएगा तो हमारे दरमियान एकसानियत आएंगी, हमारे अंदर बुराई दूर हो जाएंगी, हम मिलजुल कर रह सकते हैं, हमारे दरमियान शांति रहेंगी। बात समझ में आपको? तो आपस में हमारे अंदर जो है ना एकसानियत आना चाहिए, एकसानियत के बातों के बारे में इल्म आना चाहिए, तब इस तरह का इल्म आ जाएगा, हम माशाअल्लाह जो है मिलजुल कर रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं। मैं समझता हूँ आपका सवाल का जवाब मिला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम तौकीर है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं ब्रदर सफ़ी से एक सवाल करना चाहता हूँ। अभी आपने अपनी तकरीर में कहा कि अल्लाह का कोई औलाद नहीं, लेकिन ईसाई ये समझते हैं या फिर ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम उनके बेटे हैं, तो आप इसके बारे में कुछ मुझे बता सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने सवाल किया कि मैं मेरे तकरीर में अल्लाह को कोई औलाद नहीं है मैं कहा था, लेकिन जो है आज दुनिया में कई ईसाई लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो जीसस सन ऑफ गॉड है, खुदा के बेटे हैं। तो ये क्यों इस तरह कहते हैं, क्या बाइबल में इस तरह है या नहीं है? और हम देखेंगे पहले खुदा को एक बेटा है इस तरह कहने के बारे में कुरान के अंदर सूरह मरियम में आयत नंबर 88 से लेकर 91 आयतें अगर देखेंगे, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है वक़ालू इत्तख़ज़ रहमानु वलदा लक़द जीतुम शय्यन इद्दा तख़ादु समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु तनशक्कुल अर्ज़ु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा व मा यंबग़ी लिर्रहमान अन यत्तख़िज़ वलदा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि वो लोग कहते हैं कि रहमान को एक बेटा है, अल्लाह को एक बेटा है, वो लोग कहते हैं। बहुत बुरी बात वो लोग कह रहे हैं। अन करीब इस बुरी बात की वजह से आसमान फट जाएगा, जमीन शक हो जाएंगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। अल्लाह के शान के बराबर नहीं कि अल्लाह को एक बेटा हो, अल्लाह को कोई बेटा नहीं है। और कुरान में सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 3 देखेंगे, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह को कोई औलाद नहीं है, अल्लाह को बेटा नहीं है, बेटे नहीं है, अल्लाह भी किसी का औलाद नहीं है। कुरान वाज़ेह तौर पे बता दिया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई बेटा नहीं है। क्या बाइबल में इस तरह लिखा हुआ है कि अल्लाह को एक बेटा है या खुदा को एक बेटा है, जीसस सन ऑफ गॉड? ये अगर गौर करेंगे बाइबल के अंदर जहाँ कहीं भी बाप का लफ्ज़ आया उसका माने खुदा, और बेटे का लफ्ज़ आता है खुदा का बेटा का माने खुदा का बंदा है। ये किस तरह हम समझ सकते हैं? बाइबल के अंदर देखेंगे, न्यू टेस्टमेंट के अंदर रोमियो का जो खत है उसके अंदर चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 14 के अंदर लिखा हुआ है, जो कोई भी खुदा के रूह के हिदायत से चलता है वो खुदा का बेटा है। माने अल्लाह की हिदायत से जो चलते हैं वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बेटे हैं। जो शैतान की हिदायत से जो चलते हैं शैतान के रास्ते में, वो शैतान के बेटे हैं, माने शैतान के फॉलोअर्स हैं, शैतान की इताअत करने वाले। तो यहाँ पे इस तरह बताया गया। और देखेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 9 के अंदर, मुबारकबाद है उन लोगों के लिए जो सुलह करते हैं इसलिए कि वो खुदा के बेटे कहलाते हैं, खुदा के बेटे कहलाएंगे। देखिए बाइबल के अंदर कोई भी खुदा का बेटा नहीं है, मगर खुदा का बेटा कहलाने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ईसा अलैहिस्सलाम, क्या जीसस खुदा के बेटे हैं या खुदा के बेटे कहलाने वाले हैं? ये देखेंगे, इसके बारे में बाइबल में मिलता है। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 32 और वर्स नंबर 35 में अगर देखेंगे, वहां पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, फरिश्ता अगर मरियम अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आप हामिला होगे, आपको एक बेटा पैदा होगा जिनका नाम ईसा रखेंगे, और जो है वो बड़ा होकर बुजुर्ग होकर वो खुदा का बेटा कहलाएगा।
वो खुदा का बेटा नहीं, खुदा का बेटा कहलाएगा। बाइबल में देखेंगे तो बहुत सारे लोग खुदा के बेटा कहलाए। मिसाल के तौर पर गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 38 के अंदर आदम अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा कहकर लिखा हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम भी खुदा का बेटा कहलाए, क्यों? वो अल्लाह के फरमाबरदार थे, अल्लाह के बंदे थे। इजराइल माने याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे पहला बेटा है खुदावंद का, लिखा हुआ है, माने वो भी अल्लाह के फरमाबरदार है। इसी तरह देखेंगे इर्मिया चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 9 के अंदर लिखा हुआ है इफ्राइम खुदा का पहलौटा है। इफ्राइम भी खुदा का बड़ा बेटा है, पहला बेटा है। और इसी तरह लिखा हुआ है साम्स के अंदर चैप्टर नंबर 89 वर्स नंबर 26 और 27 के अंदर दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में, दाऊद खुदा का पहला बेटा है। तो देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को खुदा का बेटा कहला बाइबल में। सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं, खुदा का कोई बेटा नहीं है, सिर्फ खुदा का बेटा कहलाने वाले हैं। इसका माने सिर्फ और सिर्फ खुदा के बंदे हैं। मैं समझता हूँ आपका सवाल का जवाब मिला। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया बजा लाता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको इस प्रोग्राम को पुरअमन कंप्लीट करने की तौफीक अता किया। और यहाँ जितने सामीन हाज़रीन हैं और जो वॉलंटियर्स है जो इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने में हमारी मदद करे, और जो मुंतज़िमीन हैं IRDF के मेंबरान हैं, वो तमाम लोगों का, UIRC के जो टेक्निकल टीम के मेंबर है उन सब का, और UIRC के कमेटी मेंबर्स का, और हमारे स्पीकर्स का, और ये हॉल वालों का, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है हम सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया और आखिरत में बेहतरीन कामयाबी अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।